ڈوڈیال آزاد کشمیر میں مہنگائی بے قابو ہو گئی. اشیاء خوردنوش عوام کی پہنچ سے دور ہیں. مرغی کا گوشت 440 روپے جبکہ مٹن 1000 روپے کلو میں بکنے لگا ہے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار اپنی پسند کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ڈوڈیال سے ہمارے نمائندے طیب کشمیری سے. جی طیب. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈوڈیال آزاد کشمیر میں. جب سے تبدیلی سرکار حکومت میں آئی ہے اس نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے. مہنگائی کا جن آئے روز بے قابو ہوتا جا رہا ہے. اشیاء خوردونوش عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. آئے روز دیکھا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہو رہی ہے. مہنگائی کا جو ہم چیزوں کے اشیاء کے ریٹ سے یہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام برقرار رکھے تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. جی بنوں سے آپ کو خبر دیں، بنوں میں سرکاری نرخ پر آٹے کا حصول ناممکن ہو گیا. بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے غریب دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. آئیے بنوں سے دیکھتے ہیں رفعت اللہ قریشی کی رپورٹ. بنوں میں سرکاری آٹے کے حصول کے لیے غریب عوام دھکے کھانے پر مجبور. اس پر حکومت نے ڈیلرز کے لیے آٹے کا کوٹا کم کر دیا. غریب اور دہاڑی دار طبقہ آٹے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے. سرکاری آٹا جو ہے یہ بالکل بند ہو گیا ہے، بہت کم دے رہا ہے. لہذا حکومت سے ہم اور بنوں کے ڈی سی او کو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آٹا کی تعداد بڑھائے. آٹا ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پہلے آٹے کا کوٹا 150 تھیلے تھا جس میں انتظامیہ نے کمی کر کے 40 سے 45 تھیلے کر دیا. لوگوں کو آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. لوگوں کو آٹا بھی اچھا ملتا تھا، قطار بھی نہیں تھا. ابھی قطار بھی ہے اور لوگوں کو بہت تقریب ہے جو دوبارہ ہم کو دیا ہے. لوگوں نے صوبائی حکومت سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین آصف عمران کے ساتھ رفعت اللہ قریشی، نیو نیوز بند. عمرکوٹ سے آپ کو خبر دیں، عمرکوٹ کے علاقے ساماروں میں آٹا نایاب ہو گیا ہے. انتظامیہ کی ملی بھگت سے آٹا ڈیلرز اور چکی مالکان کی من مانیاں جاری ہیں. آٹے کے نرخ 70 روپے سے بڑھ کر 80 روپے فی کلو ہو گئے جبکہ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان مارے مارے پھر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں راشد حنیف قائم خانی کی اس رپورٹ میں. ضلع عمرکوٹ کی تحصیل ساماروں میں آٹا ہوا نایاب. صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کی چپکلش میں غریب شہری پسنے لگے. آٹے کی سرکاری قیمت 48 روپے فی کلو مقرر ہے جبکہ چکی مالکان اپنی مرضی سے 70 سے 80 روپے فی کلو قیمت وصول کر رہے ہیں جو تحصیل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. دودھ پالش کرتا ہوں، 100-150 کماتا ہوں سارے دن میں. 70-80 روپے کلو آٹا ہے، 100 روپے کلو چینی ہے، 200-250 روپے کلو دال ہے. غریب بندہ کدھر سے پاندی پوری کرے. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 80 آٹا چکیوں کے لائسنس جاری کیے گئے ہیں. تاہم سامارو شہر میں 12 آٹے کی چکیاں لوگوں کو آٹا فراہم کر رہی ہیں. باقی 68 چکیوں کی گندم کہاں جا رہی ہے ضلعی انتظامیہ بتانے کو تیار نہیں ہے. بھائی جان بالکل آٹا تو مہنگا ہونا ہی ہے انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے. یہاں پر 80 آٹا چکی کے لائسنس ہیں لیکن سامارو شہر میں صرف 12 آٹا چکی ہیں. باقی کی 68 آٹا چکیوں کا سامان کس کے پاس جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، بالکل بھی نہیں. جبکہ شہریوں کی جانب سے کئی بار احتجاج کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. راشد حنیف قائم خانی، نیو نیوز سامارو. ساماروں کی صورتحال آپ نے جانی. ملک بھر میں مہنگائی کی سونامی نے غریبوں کو ڈبو دیا ہے. اسی طرح سے سندھ کے شہر تنگوانی میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو کر بوتل سے باہر نکل آیا ہے جس نے غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں تنگوانی سے نیو نیوز کے نمائندے سبحان علی ملک کی اس رپورٹ میں. اشیاء خوردونوش تو اپنی جگہ، مرغی بھی مہنگی ہو گئی. دہاڑی دار طبقہ مرغی خریدنے سے بھی محروم. مرغی کا گوشت فی کلو 400 روپے میں بکنے لگا. کے بعد ہم مرغی صرف دیکھ رہے ہیں، مرغی خرید نہیں کر سکتے. تبدیلی سرکار نے تو عوام کا جینا اجنن کر دیا ہے. پہلے آٹا، چینی، دال اور اب مرغی کی جو اڑان ہے وہ آسمان پر پہنچی ہے. شہری کہتے ہیں کہ مرغی کے دام کو کم کیا جائے تاکہ خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں. کیمرامین ٹیم اکبر سندھی کے ساتھ سبحان علی ملک، نیو نیوز تنگوانی.
और अभी यहाँ पर मुल्क की सियासी मंजरनामे से जुड़ी अहम खबर आपको देंगे। तमाम हुकूमतें इत्तेहादी जमातों के अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने की यकीन दहानी करा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास खत्म हो चुका है। वज़ीर आज़म की जानिब से एतमाद का वोट लेने से मुताल्लिक अरकान को एतमाद में ले लिया गया है। वज़ीर आज़म अपना मंशूर और मकसद अरकान के सामने रखे। उन्होंने और PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने इजलास में शिरकत की। इस इजलास का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, आगाह कीजिएगा, इजलास में क्या कुछ कहा गया और जो अरकान इसमें शिरकत किए हुए तो उनकी जानिब से किस किस्म के एतमाद का इजहार किया गया? देखिए मदीया, कल क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही एतमाद का वोट लेने का फैसला किया था और कल उन्हें एतमाद का वोट लेना है कौमी असम्बली से, तो इसी सिलसिले में PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान का एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक अरकान को एतमाद में लिया गया और अपना जो मंशूर और मकसद है सारी सूरत-ए-हाल के पीछे उससे उन्हें आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा हद तक क्लियर किया कि मेरा मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि अवाम की फलाह है और शफाफ निज़ाम की तब्दीली की कोशिश कर रहा हूँ और अदारों की मजबूती और शफाफत यकीन बनाने के लिए अपनी जदोजहद रखी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने तमाम जो खदशात थे वो उनके सामने रखे और तमाम तर मौजूद वहाँ अरकान ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पर अपने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान ने भी वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। एक पॉलिसी तरतीब दी गई कल के हवाले से कि किस तरह कौमी असम्बली में जब 172 से ज्यादा अरकान की वहाँ मौजूदगी हो ताकि एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म वहाँ बासानी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी खबर देंगे आपको कसूर से। कसूर के इलाके इलाहाबाद में महंगाई की बढ़ती हुई शरह से आवाम के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे हैं। तब्दीली सरकार महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह से नाकाम होकर रह गई है। इलाहाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों के बारे में आपको मजीद भी हम बताएंगे। चंद सालों में महंगाई में इस कदर इजाफा हो गया है कि अब आवाम बाजार जाते हुए भी घबराते हैं। बात करें ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। 10 दिन पहले 250 रुपए फी किलो बिकने वाला मुर्गी का गोश्त 360 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और दूसरा अजाब रोजमर्रा की अशिया, आटा, घी, चीनी, दालें खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों लाइनों में इंतजार का है। चीजें मिलती हैं कि नहीं ये अलग बहस है। महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है कि गरीब आदमी मुर्गी का गोश्त भी नहीं खा सकता। घंटा हो गया लाइन च लगे हैं ते आटा नहीं मिल रहा, सब परेशान आ। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब आदमी की पहुंच तो बाहर है, गरीब आदमी का जीवना मुश्किल हो गया। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के हौसले पस्त कर दिए हैं। मुस्तकिल करीब में भी गरीब आदमी को हालात संवरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। राना समीउल्लाह, नियो न्यूज, इलाहाबाद। जलालपुर भट्टियां में यूँ तो मटन की मुख्तलिफ डिशेस तैयार की जाती हैं, मगर बगैर मसाला जात और घी के भट्टे पर तैयार की जाने वाली डिश अपनी मिसाल आप है, जिसे कैरी रोस्ट का नाम दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद मुनीर की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भट्टियां में तैयार की जाने वाली मुनफरिद डिश कैरी रोस्ट के चर्चे। कैरी रोस्ट मटन के गोश्त से बगैर घी और मसाला जात के तैयार की जाने वाली डिश है। कैरी रोस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले मटन गोश्त की छोटी छोटी बोटियां की जाती हैं। फिर मटन गोश्त की बोटियों को नमक, काली मिर्च और सब्ज मिर्च लगाकर कली में लपेट दिया जाता है और इसके बाद ईंटों के भट्टे की कैरी में 2 से 2.5 घंटे तक दबाकर रखा जाता है। तैयार कैरी रोस्ट का जायका ऐसा है कि खाने वाले इसकी तारीफ के बगैर ना रह सके। हमारा दोस्त इधर भट्टे पे मटन कैरी रोस्ट तैयार करता है, उसने हमें आज इनवाइट किया है। हम सब लोग इधर आए हैं। बहुत मज़ेदार मटन कैरी रोस्ट बनाया उन्होंने, हम सब लोगों ने खाया है, बहुत मज़ा आया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਵਾਏ ਨਮਕ, काली मिर्च और सब्ज मिर्च, इवन के घी तक इस्तेमाल नहीं करीदा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज तैयार होता है। कैरी रोस्ट मुकामी होटल्स पर दस्तयाब नहीं होता, तहम इसकी तैयारी में दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर अपना हिस्सा डालते हैं। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज, जलालपुर भट्टियां। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तीमरगरा के ज़ेर इंतज़ाम 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर लोहरदीर ऑन हैदर गोंदल और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शौकत अली ने खिलाड़ियों में शील्ड्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की। मज़ीद जानते हैं नवाब बादशाह की रिपोर्ट में।
गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तिमरगरा में मुनक़िदा 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हुआ। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, बास्केटबॉल, रस्साकशी, दौड़, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसे खिलाड़ियों ने खूब सराहा। जो कोरोना पेंडेमिक के बाद हम सब स्टूडेंट मायूसी के शिकार थे, डिप्रेशन के शिकार थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे थे क्लोजिंग इवेंट था, 16 डिपार्टमेंट थे स्पोर्ट गाला में। तकरीब तकसीमी इनामात में मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लुअर्दी रोहन हैदर गोंदल, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शौकत अली व दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और शील्ड्स तकसीम किए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तिमरगरा के स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब पे आकर नहायत ही एक जो है दिल को खुशी मिली है। किसी भी जगह पे स्पोर्ट्स के ग्राउंड का आबाद होना इस बात का शाहिद होता है कि अमन का दौर दौरा वहाँ पर दोबारा आ चुका है। इस मौका पर कॉलेज इंतजामिया ने आइंदा के लिए भी इस तरह के इवेंट्स मुनक़िद कराने का ऐलान किया। कोविड-19 के बाद ये गाला इस पैगाम के साथ एख्तिताम को पहुँचा कि तवाना जिस्म मजबूत आसाब का मालिक होता है। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाबाद शाह, न्यूज़ से मरगरा, लुअर। मलका कोसार मरी लॉरेंस कॉलेज में 18वीं सदी का खूबसूरत चैपल अपनी आबोताब के साथ आज भी मौजूद है। इमारत के साथ मौजूद कब्रें भी दुरुस्त हालत में मौजूद हैं। नुमाइंदा न्यू ताज बुखारी लॉरेंस कॉलेज के चैपल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ताज बुखारी। जी बिल्कुल, मैं एक मौजूद हूँ यहाँ पे एक खूबसूरत चैपल में, जो तारीखी चैपल है और यहाँ पे 18वीं सदी का एक बहुत खूबसूरत फ़न तामीर का नमूना है ये, जो पत्थर और लाल मिट्टी से बनाया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो बहुत खूबसूरत जो है वो पेंटिंग्स भी की गई हैं। और इस तारीखी इमारत को अगर देखें तो इसकी बनावट जो है बहुत खूबसूरत है। बाहर जो है 18वीं सदी की कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस में हर इतवार वाले दिन जो लोग हैं यहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो लॉरेंस कॉलेज की इंतज़ामिया और उनके जो ब्रिगेडियर मुजाहिद आलम है उनको जाता है कि उन्होंने इस तारीखी विरसे को आज तक संभाल के रखा हुआ है और इसकी मेंटेनेंस का आज भी जो है वो ऐसे ही ख्याल किया जाता है, और जिसकी वजह से आज ये तारीखी इमारत जो है अपनी शान और शौकत के साथ आज भी खड़ी है। जी अब यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, गुजरावाला की तहसील कामों की किनवाही गांव दंडिया में 700 किनाल सरकारी अराजी गुजार करवा ली गई। अरसे दराज से इरफान भट्ट ने सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। ऑपरेशन के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कामों की कुरतुलैन जफर का कहना था कि कोई फर्द भी कानून से बालातर नहीं है, ऐसी कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। और हैदराबाद में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान बड़ी तादाद में घरों दुकानों के सामने की गई तामीरात मुस्मार कर दी गई, जिससे शहरियों में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। हैदराबाद से नासिर शेख की रिपोर्ट देखिए। अदालत के हुक्म पर हैदराबाद में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान सैकड़ों की तादाद में घरों, दुकानों और दफातर के बाहर बनी 4 दीवारियों और गैर कानूनी तजावुज़ात मिसमार कर दी गई हैं। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में बड़ी तादाद में घरों और दुकानों के साथ ही कब्जे करके तामीरात की गई थी, जिसकी वजह से सड़कें, बाजार और गलियां तंग हो गई। लेकिन अब गैर कानूनी तजावुज़ात के मिसमार होने के बाद ये इलाके कुशादा हो गए हैं। हैदराबाद में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबाए इंसदाद नाजायज़ तजावुज़ात की मौजूदगी के बावजूद जगह जगह न सिर्फ सड़कों और गलियों में कब्जे किए जाते हैं, बल्कि इन पर तामीरात भी करा ली जाती है और ये इदारे खामोश बैठे रहते हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। सवात में मुसलमानों ने सिख कम्युनिटी के दिल जीत लिए। सिखों की दरीना मुतालबे पर शहरियों ने बारियात ज़मीन देकर शमशाद घाट की तामीर मुमकिन बनाई, जिससे सिख कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद जानते हैं सवात से हारून सिराज की इस रिपोर्ट में। स्वात में मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। इलाका मकीन सिख बरादरी के लिए मुसलमानों के ताउन से शमशान घाट की तैयारी। लोकल कम्युनिटी हमारे साथ बिल्कुल भाईचारे जैसा सलूक करती है, बल्कि अगर हम ये कह दें कि वो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते तो ये झूठ नहीं होगा। बंगोरा में सैकड़ों की तादाद में आबाद सिखों को मुर्दों की आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट की जरूरत थी, जिसे मकामी मुसलमानों ने सस्ती जमीन की फराहमी और माली मुआवनत से पूरा कर दिया। ये लोकल भाइयों की ज़मीनें थी, मुस्लिम भाइयों की। वो हमें अपना खेत तक दे देते कि आप यहाँ पे अपने मुर्दे का अंतिम संस्कार करें। ये ताउन हमारे साथ करते रहे। फिर एक मुस्लिम बुजुर्ग ने बड़े
सस्ते रेट में ये ज़मीन हमें बेची शमशान घाट की, और फिर लोकल गवर्नमेंट के ताउन से शमशान घाट हमने बना लिया। मुसलमानों और सिखों के बाहमी इत्तिफाक से बनाया जाने वाला स्वात का शमशान घाट पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ हारून सिराज, नियो न्यूज़, मंगोरा, स्वात। राजनपुर के नवाही कस्बे रकबा नबी शाह में गरीब बेवा पर वडेरे ने ज़मीन तंग कर दी। बेवा की तैयार गंदम की तलब कर दी, जिससे मुतासरा ख़ानदान ने खूब एहतजाज किया। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ मशवरी। उनसे जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, इस वक्त राजनपुर के नवाही इलाका रकबा नबी शाह के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बेवा औरत की तैयार फसल गंदम की थी, तो एक जिम्मेदार ने आके उसकी फसल काट ली और उसकी फसल का बहुत ज्यादा नुकसान दिया। इस वक्त भी मेरे साथ बेवा खातून मौजूद है, उससे जानेंगे। तारीख खोरते हबीब पठान भी जान मेरे गंदा वादा कटिया जा मरम जाला मैंने गदम कटिया जा सब धिके देते ने सब कई कोई गाली कितने ने सब पुलिस फोन किते से पुलिस आ गया संग ने वो सारी जान छुड़ा गई। मेहरबानी करो, सारी की हक दिगार करो। इनका कहना यह है कि पुलिस जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे ताकि वो लोग मुझे दोबारा मेरी गंदम का नुकसान भी ना करें और मेरे नुकसान का इजाला भी किया जाए। जी, और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स का। वेलकम बैक। शहर शहर गांव गांव में अभी खबर देंगे आपको बिहाड़ी से। बिहाड़ी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेन करमपुर मुल्तान रोड अरसा दराज से खस्ता हाल है। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद जानते हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिहाड़ी शहर की तो यहाँ पर बिहाड़ी ज़िला पर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहाड़ी का नवा इलाका लुड्डन, जिसका मेन करमपुर रोड जो है वो अरसद दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं और इसकी वजह से यहाँ पे आए रोज़ हादसा भी हो चुके हैं और इसमें कई कीमती जो इंसानी जाने हैं वो भी ज़ाया हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो इंतजामिया है वो ख्वाब गफलत की नींद सोई हुई है। इस वक्त यहाँ के जो ताजर हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनकी तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। ये तकरीबन 7-8 साल से लोग इतने परेशान हैं। अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। गर्द गुबार और ये जो गटर लाइन की वजह से ये भी एक मसला, लेकिन गर्द गुबार की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ पे कारोबार इतना मुतासर हो चुका है कि लोग यहाँ सब कारोबार करना इनके लिए मुश्किल है। तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस रोड को फिलफौर जो है मुरम्मत किया जाए और आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। और लिया में सफाई की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान है। सड़कों और गलियों में मौजूद कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी बीमारियों का बायस बनने लगा है। शहरियों ने हुकाम से सीवरेज सिस्टम की मुरम्मत का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर हयात से। जी बिल्कुल, एक तरफ तो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शहर भर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर गलियों और सड़कों के हालात देखा जाए तो जगह जगह कचरे के ढेर है, ताफन उठ रहा है और गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाला जो गर्मी का मौसम है, इस गंदगी की वजह से मच्छरों की बहुतात हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हर जगह गली गली में जो है ये जोड़ और तालाब की शक्ल बनी हुई है। शहर में किसी किस्म कोई काम नहीं हो रहा, सिवाय एमपीए साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के हवाले से कि कम से कम मेहरबानी करें, अपनी कारकर्दगी दिखाएं। लोगों ने उनको वोट दिया है, फर्स्ट टाइम आए हैं। और मेरी असफर जिया डिप्टी कमिश्नर लिया जो है उनसे भी रिक्वेस्ट है, कमिश्नर डेरा गाजी खान से भी रिक्वेस्ट है, कम से कम शहरों को जो है इस हद तक क्लीन किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है अरबाब इख्तियार से कि शहर को फौरी तौर पर साफ़ सुथरा किया जाए ताकि आने वाले मौसम में जो बीमारियाँ ना पैदा हों और जो मच्छरों की बहुतात है वो रुक सके। जी, जलालपुर भट्टियां ज़िला हाफिजाबाद में आला किस्म के ज़रूरी आलात तैयार किए जाते हैं। लोहे और दीगर अशिया महंगी होने से ज़रूरी आलात की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। किसानों के साथ साथ इंडस्ट्री मालिकान भी शदीद परेशान हैं। मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट देखिए। ज़रूरी आलात महंगे क्या हुए, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान रहने लगे। जलालपुर भट्टियां जो ज़रूरी आलात बनाने में मशहूर है, इन दिनों शदीद मुश्किलात का शिकार है। इंडस्ट्री मालिकान का कहना है कि गंदम की कटाई करने वाली रैपर मशीन की कीमत 80,000 से बढ़कर 1,10,000, जबकि हल की फी जोड़ी कीमत 95,000 रुपए तक जा पहुंची है। जबकि दूसरी तरफ डिस्क तवा 2,50,000 रुपए, चॉपर मशीन 7,50,000 और थ्रेशर मशीन की कीमत 4,50,000 होना ज्यादती है। किसान ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਮ ਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ
हुकूमत अगे अपील करने कि ज़रूरी आलात बनाने वालों नूं सबसिडी दी जाए। किसानों समेत ज़रूरी इंडस्ट्री मालिकान ने हुकूमत से लोहे के निर्ख कम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज़, जलालपुर भटियां।